Friends, you are welcome to my YouTube channel Biology Talk. In today's video, we are going to talk about chapter Nutrition of class 10th. In this particular video, we are going to talk about types of heterotrophic nutrition. Friends, as we all know, there are three types of heterotrophic nutrition. First is holozoic, second is saprophytic, and third is parasitic. First, we are going to talk about holozoic type of nutrition. The word holozoic is made up of two words, holo and zoicus. Holo means whole, yani pura, and zoicus means animal, yani jeev. Means the organisms in this process will intake food as a whole. The food may be liquid or solid, and the food will be further broken down into simpler molecules. इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सॉलिड या लिक्विड फूड को गेन करेंगे, इनटेक करेंगे, और फिर उस फूड को आगे ब्रेक डाउन किया जाएगा उनके बॉडी में सर्टेन एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा, ताकि वो फूड आगे जाके फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो पाए, टूट पाए. And now we are going to talk about the holozoics. What organisms are known as the holozoics? The organisms that perform holozoic nutrition are known as holozoics. वैसे जीव जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे उन्हें हम लोग होलोजोइक बोलेंगे. मतलब कि ये जो हैं किसी सॉलिड या लिक्विड फूड को इनटेक करेंगे और फिर उनके बॉडी के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन होगा और वो फूड सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा. Most of the animals such as amoeba, insects, frog, reptiles, birds and human beings exhibit holozoic type of nutrition. ज़्यादातर जो जानवर होते हैं जैसे कि अमीबा, insects, frogs, reptiles, birds, human beings exhibit holozoic type of nutrition. सभी जानवर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जीव, बर्ड्स और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स भी इस होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट saprophytic nutrition. The word saprophytic is made up of two words, sapro and phytos. Sapro means rotten यानी कि सड़ा हुआ, and phytos means plants यानी कि पौधे. In this particular mode of nutrition, the organisms obtain their food from dead and decaying matter of plants and animals. इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में जो जीव होंगे वो सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहेंगे. यानी वो सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे. The organisms that perform saprophytic mode of nutrition are known as saprophytes. वैसे जीव जो कि saprophytic mode of nutrition को परफॉर्म करते हैं यानी कि सड़े गले प्लांट और एनिमल पार्ट्स को वो कंज्यूम करते हैं, टेक इन करते हैं अपने फूड के तौर पे, उन्हें हम लोग saprophytes के नाम से जानते हैं. They secrete enzymes that are digestive from their body which digest and break down the complex decaying organic matter into simple molecules. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो सैप्रोफाइट्स होते हैं इनके शरीर से कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स निकलता है जो कि अपने फूड को डाइजेस्ट कर देता है और उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है. यानी जो प्लांट और एनिमल्स के जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होंगे उसके ऊपर ये सैप्रोफाइट एंजाइम को सिक्रीट करेंगे और उस एंजाइम के एक्शन के वजह से वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, वो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेगा, वो और भी सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा जिससे कि उनकी बॉडी उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके. The soluble end products digested juices particle are then absorbed by them. और फिर जब वो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटा हुआ फूड है वो उनके शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. Example of saprophytes are some bacteria, fungi such as molds, Rhizopus mucor and mushrooms.
सैप्रोफाइट्स के कुछ उदाहरण हैं कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स और मशरूम्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। The word parasitic is made up of two words, para and cytos. Para means other and cytos means food. Means the organism will take their nutrition from other organism. The heterotrophic mode of nutrition in which the organisms obtain food from the other living organism is known as parasitic nutrition. यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज पैरासाइट्स। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन आर कॉल्ड होस्ट। वे जीव जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। यानी कि ये जो पैरासाइट्स होंगे अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, और वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, उन्हें हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं। इन दिस प्रोसेस द पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज जनरली हार्म्ड। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पैरासाइट्स को बेनिफिट होता है जबकि होस्ट को जनरली हार्म होता है, हानि पहुंचती है। द होस्ट में बी अ प्लांट और एन एनिमल। होस्ट जो है वो कोई प्लांट भी हो सकता है या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। Now we are going to talk about types of parasite. There are two types of parasite. First is endoparasite and next is ectoparasite. Parasites that live inside the body of the host are known as endoparasites. For example, Plasmodium, which is malarial parasite, Taenia solium, Ascaris. यानी वैसे पैरासाइट्स जो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम लोग इंडो पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं। वाइल पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर नोन एज इक्टोपैरासाइट्स। वैसे पैरासाइट्स जो होस्ट के बॉडी के बाहर रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम लोग इक्टोपैरासाइट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इक्टोपैरासाइट्स आर कस्कटा विच इज ए पैरासाइटिक प्लांट, मस्क्यूटोज, लीचेज, टिक्स जो कि जानवरों के बॉडी पे, बफलोज के बॉडी पे होती हैं जनरली, लाइस जो कि ह्यूमन हेयर में होती है और ब्लड को सक करती है। So this is all for today. If you have any question regarding this topic, heterotrophic mode of nutrition or the type of heterotrophic mode of nutrition, then please comment in the comment section below. Thank you. Please watch, like, share and subscribe this channel.